एक दो चेयर रूम नंबर 4 में ले आइए। Good morning, everyone present here in the campus of Navodaya Beach. Friends, today we are going to start our second session of in-house training, which is conducted by the COE of CBSE Patna region. And I am Umesh Kumar Pathik as a resource person in the CTU. Hope all of you will enjoy the session. And the topic is very interesting, that is multilingualism in the classroom. Actually, the NSF 2005 National School Framework always describes that the multilingualism in the classroom is very important for the learning of the student. It develops the creative mind as well as the thinking skill also. So, being a teacher, it's our duty to develop their creative skill in which language the students like to describe himself. Everyone, especially in those regions where the different types of languages are spoken, students like to describe themselves in their own mother tongue. And this is very interesting topic. It is said that the person who knows different kinds of language, especially more than one language, that is called multilingual. And of course, every person becomes multilingual because L1 is, language 1 is his mother tongue. Second, which he learns in the school. And third, which he earns the language for his gathering money for the job and other things like cultural activities and to get different types of knowledge in different languages. So every man becomes multilingual. And now it depends over us that how we can implement this in our classroom, that the students don't feel themselves depressed and can explain themselves in their own language. Even in the NEP 2020, National Education Policy 2020 also describes the local for vocal. What this means? Of course, this means that the student and the teacher must create a relation between themselves where the student freely and easily explains himself in his own language. Either it is Bhojpuri, it is regional language, Maithili, Tamil, Kannada, Malayalam or other languages. So today we will try to know that what is multilingualism and how we can implement this type of methodology in the classroom. First, this is very interesting that a student comes in the school and here he begins to learn a language. It is said, always it is said, that we should learn what we don't know. We try to learn what we don't know. We try to meet those people who we don't identify. That means, it may be said in Hindi, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, ज्ञात से अज्ञात की यात्रा ही शिक्षा है, परिचित से अपरिचित की यात्रा ही शिक्षा है। लेकिन ये कमाल है और ये विचित्रता भी है, यही रोचकता भी है एजुकेशन की, कि एक बच्चा जब क्लासरूम में एंट्री लेता है तो अज्ञात से ही शुरुआत करता है लैंग्वेज के लेवल पर। खास करके अब के दौर में पिछले 2 दशकों में जो डेवलपमेंट है एजुकेशन का, जो एजुकेशन साइकिल है, उसमें पब्लिक स्कूलों में जब बच्चे जैसे ही एंट्री लेते हैं तो उसकी शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है। ओपन योर बुक, चिल्ड्रन बी साइलेंट, कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज, एंड सच टाइप ऑफ लैंग्वेज ही हैज नेवर लर्नड इन हिज लाइफ। A student of 3 years, he has never learned such type of languages in his own house, and now he enters in the classroom and just hears, don't make noise, keep quiet, sit silent, come here, may I go, ma'am? May I go, sir? He has to speak. He has to speak. What it means? That this is the journey from agyat to gyat, and here the gap creates. And then such type of students feel themselves depressed, confused, what I should do, how I will cope up with the class, because I don't know such language which is spoken by the teacher. So here the role of teacher becomes very important to make the student bilingual, that he may express himself even in his own language, and teacher will create such type of atmosphere in the classroom that every student
must learn and speak firstly in his own language and then learns the second language, third language, and this journey will be continued. But when we will implement, we will compel the student to speak only in language in the classroom, only in English and other languages which are prescribed by the school management, then that will be a great problem for us. So being a teacher, being a facilitator, being a guide of the classroom, it's our duty to make our students multilingual gradually, not suddenly, not force them to speak English or other languages which will be prescribed. First, let him speak in his own language. Second, you teach them to speak second language. Then he will grow up, the class will be grow up, and then he will learn the third language as usual. Now we'll know what is important and what is LAC. LAC, that means languages across the curriculum. Just for example, I will try to say, the CBSE curriculum explains and suggests that the student must speak in English. All the books are in English, either EVS, science, mathematics, social science subjects are in English, except Hindi subject. So language across the curriculum, what it means, that a teacher being a teacher, it's our duty that we will cross the language which is prescribed by the CBSE or the prescribed board, and we will speak other languages also in the classroom, by means of which a student will be able to learn what we teach in their own language, either it will be the original language. The schools like JNV and NV, they create atmosphere and they have the tourism program. What it means? Always there is, in the Jawahar Nehru Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, there is a program named tourism program. Students of Chhapra district will go to the Manipur and the students of Himachal will come to the Chhapra district. Why? To learn the tourism, to learn the atmosphere, to learn the language, to know about the culture and everything of the local. So this is our duty to teach them about the localism also, not only on the basis of language, about the culture, about the tourism and other things which will develop the relation between all around the world and even the country also. Language across curriculum is a modern approach that language learning should be occurred throughout the school hours in language classrooms as well as other subject classrooms. Second, the goals of LAC. LAC means language across the curriculum. Simply speaking, to support language development in each and every child in all domains of language use in each learning activity in school. This is devised to reflect about the strongly language medicated evaluation criteria for success in academic learning, in passing tests and in getting good marks. So the overall goal is not just developing quantitative academic language perspective, but conceptual literacy. I always focus on the conceptual. Never try to compel the student to remember the thing. Always try to make the student's mind to learn the thing. Make them always that they can create their own answer, their own thinking. Their mind should be developed to create everything by themselves, not be focused that you will create anything and they will be learn everything. They will learn and imitate you. It is a natural phenomenon that students like to imitate teachers, even in the answers. But it is not necessary that being a teacher we are writing the answer that is the model answer, and the student who has written that is not a model answer. It is possible that students also can write the model answer. So let them encourage to write their own answer in their own thinkings according to their own concept. That can also be the model answer. So let them be thinkful. Their thinking skill. This is our duty to make their thinking skill more developed than to create ourselves. That you should just remember my answer. You will have to write my answer in the concept book, and that will be the perfect answer. A student can also write the perfect answer. We just encourage them. Now, LSE has been embraced by a number of academic institutions nationwide, and it is really readily identifiable, means to indicate the student's ability to engage in multilingual learning in preparation for the workplace. Being a public school teacher, being a CBSE board teacher,
whenever you go to seek a job and enter in the principal's chamber, the first question is, and even in our resume also we write, language we know. 3 languages, 4 languages, 2 languages, 1 language, whatever you know, we definitely write. The person who is multilingual, that is definitely prescribed and always be praised by the principal, and he likes to take first interview of those people who have the multilingual power. Why? Why it is necessary to be multilingual? Okay? Because in local cities, if we are able to speak 2 languages, if you have to skill to speak more than 2 and 3 languages, we can not only make our career more successful, but we can also make our school, our institution, our management, our job place also more successful, and we can also get a lot of success in our life, as well as we can teach our students different languages, and we can be able to explain the topic in different languages according to the ability of the students. ये प्रायः ऐसा देखा जाता है, ये लिमिटेशंस है साइंस के टीचर के पास कि उनके पास लैंग्वेज की कमी है। लैंग्वेज की कमी है मतलब लैंग्वेज की बाध्यता है। उनके बुक्स इंग्लिश में है, उनके एक्सप्लेनेशंस इंग्लिश में है, वे इंग्लिश में कंफर्टेबल भी हैं, उनके टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, और वे क्लासरूम में इंग्लिश को एक्सप्लेन करने में ज्यादा कंफर्टेबल। लेकिन एक गांव के बैकग्राउंड का लड़का जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, सडनली अपना बोर्ड चेंज करता है और आपके क्लासरूम में बैठ जाता है। एज ए टीचर अब आपका रोल यहाँ क्या होता है? आप बहुत परफेक्ट टीचर हैं, आप मास्टर क्लास है अपने सब्जेक्ट में और आपकी पूरी पकड़ है अपने टॉपिक पर, लेकिन वो बच्चा आपकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को समझ ही नहीं पा रहा है, और वो ही ब्रिलियंट चाइल्ड, मेंटली वो काफी ब्रिलियंट, आप बहुत ब्रिलियंट टीचर है, लेकिन एक गैप है आपके लिए और वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। और 7 दिन के 60 घंटे के क्लास के बाद आफ्टर 7 hours the teacher said the boy is foolish, और वो लड़का कहता है I am unable to understand the teacher। ये कहाँ गैप है? दोनों ने अपने अपने फील्ड में महारत हासिल की है। टीचर का 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका करियर 24 इयर्स का है, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो नहीं सकता है। और बच्चा अभी ब्रिलियंट है, ये आप समझ रहे हैं। आपके लैंग्वेज में दिए गए सवाल को अपनी भाषा में वो तुरंत बनाता है, आंसर वो तुरंत लाता है, कॉपी वर्क तुरंत करता है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लेन करने को कहते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाते। स्कोर वो खूब कर रहा है लेकिन बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आप खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। ये गैप कैसे फिल होगा? ये गैप भरा कैसे जाएगा? कैसे होगा? आप हिंदी के टीचर, साइंस वालों के साथ ये प्रॉब्लम है। आप हिंदी के टीचर हैं, आप धारा प्रवाह तत्सम शब्दों में बोलते चले जा रहे हैं अपने क्लासरूम में। बच्चे आपके विद्वता से दबे हुए हैं। आपने इतनी विद्वता दिवाई कि बच्चों को रौंद दिया अपनी विद्वता से पूरे क्लास में। ये जबरदस्त आपने दिखाया कमाल अपने क्लास में। और पूरा क्लासरूम एज ए प्रिंसिपल गेट के बाहर खड़ा होकर उन्होंने सुना, 2 गेस्ट भी सुने। गजब, आपने तो सर कमाल के टीचर सेलेक्ट किए। 40 मिनट में इन्होंने 400 तत्सम शब्द बोले। अद्भुत टीचर है। आप पूरी अपना कॉलर को टाइट करके क्लासरूम से बाहर निकले, आपकी विद्वता पे कोई शक नहीं है। आप तत्सम शब्द बोलते हैं तो तद्भव शब्द आदेशक से आपकी शंका ही नहीं कर सकता है। लेकिन उसका आउटपुट क्या है जब क्लासरूम में जाने पर पता चलता है, तो बच्चे कहते हैं सर पहले वाले सर ज्यादा ठीक है। ऐसा क्यों होता है? आपके पास ज्यादा डिग्री है, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आपके पास अध्ययन भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, रेफरेंसेज भी हैं, फिर भी आप अच्छे टीचर नहीं हैं। और एक सिंपल मैट्रिक पास आदमी बहुत अच्छा टीचर है। ये है कम्युनिकेशन, ये है मल्टीलिंगुअलिज्म। जहां आपने अपने लिए पढ़ाई की, गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय को लिख दिया। स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा,
मजा तो उनको आया लिखने में, लेकिन जब तक पूरी दुनिया को वो पढ़ने में मजा नहीं आता, रामचरितमानस घर घर में नहीं पहुंचता। मजा जब दुनिया को आया तभी वो मजा, और दुर्लभ दुनिया वालों ने जाना भी कि स्वांत सुखा है, वरना कोई पढ़ता ही नहीं। और बैठे हुए हैं निखिल भैया यहाँ, कालिदास के मेघदूत को तो सभी ने पढ़ लिया और मजा भी ले लिया, लेकिन विक्रम और वशियम को किसी ने नहीं पढ़ा, मजा भी नहीं आया, तो कोई नाम भी नहीं जानता संस्कृत वालों को छोड़ के। क्योंकि जब तक आप अपने टीचिंग में, जब तक आप अपने राइटिंग्स में, जब तक आप अपने इवन अपने कहना चाहते हो बिहेवियर में किसी को रोचकता, आनंद, मजा नहीं दे सकते, तब तक हम आपको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी ही क्यों नहीं। क्लासरूम की तो बात क्यों, तो आपकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ तो होना चाहिए जिससे हम आपको पढ़ना चाहें, और वह पर्सनालिटी में यदि तत्सम प्रधान आपकी पर्सनालिटी है तो हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हमको सीखना है, और आप हमको कुचल रहे हैं अपने शब्दों से, लगातार शब्द थ्रो कर रहे हैं। एज ए टीचर हमारी ड्यूटी है कि हम स्मूथली डिलीवर करेंगे चीजों को, जो जितना ज्यादा कठिन है उसको उतना ज्यादा सहज बनाए, उतने ही अच्छे हम टीचर। हम दुरूहता से सहजता की ओर बढ़े, कॉम्प्लिकेशन से सिंप्लिसिटी की ओर बढ़े, तो हम एक टीचर है। लेकिन सिंप्लिसिटी से यदि कॉम्प्लिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ये सोच के कि हमारा लेवल तो यहाँ है। मेरे गुरु जी हुआ करते थे, भैया जानते हैं, इंग्लिश में पदनाकर जा सकते, बड़े टीचर इंग्लिश के, बड़े विद्वान, तो उसे गुरु कहे जो पढ़े वो जानते हैं, पीछा से बहुत बड़ा नाम। ग्रेजुएशन और पीजी के क्लास में जब क्लास किया करते थे, जब डिलीवर करते थे तो बच्चों के ऊपर से जाता था, और कॉलेज टीचर थे, पोस्ट ग्रेजुएट के लड़कों के ऊपर से भी उनका लेक्चर जा रहा है, उनके विद्वता पर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं। एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर है, ये बात उन तक पहुंचाएंगे कि आपकी बात समझ में आती है। उन्होंने कहा कि तो मैं क्या करूं इसके लिए, मेरा जो कद है मैं तो उसी कद से बोलूंगा, सुनने वालों को कहिए अपना कद ऊंचा कर रहे हैं। ये उनका तर्क था, सुनने वालों को कहिए अपना तर्क ऊंचा कर रहे हैं। मैं तो पीजी लेवल का लेक्चर दे रहा हूं, बैठने वाले इसका मतलब कि पीजी लेवल के नहीं है। एक ये भी लॉजिक है। इस नजरिए से भी हमें सोचने की जरूरत है। क्या हमारे क्लासरूम में कोई ऐसा लड़का तो नहीं जिसका लेवल बाकी लड़कों से टॉप ग्रेड है, बाकी लड़कों की तुलना में 5 लड़के बेहतर हैं, और हमारा लेक्चर बिलो 60% वालों के लिए है, और वो 60% 80% प्लस वाले हैं जो हमारे क्लास में बोर फील कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे टीचर तो हमारे लिए भी चैलेंज है, हम तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करें। ये दिस इज द इनोवेशन, दीज आर द चैलेंजेस फॉर ए टीचर। 40 बच्चों के क्लासरूम में सबके डिफरेंट एबिलिटीज हैं, आपको सबको सेटिस्फाई करना है। एवं आप क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन में जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाने का स्टडी किया है, रीड करके प्रॉपर उसको पढ़ा है, बताया जाता है कि कौन क्वेश्चन, कितने परसेंट के क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, लेवल क्या होगा उनका आउटरीच क्या होगा, कितने परसेंट टफ होंगे, कितने हार्ड होंगे, कितने एक्सेलेंट होंगे, कितने मीडियम होंगे, कितने एवरेज होंगे, कितने मिड एवरेज होंगे। और ओवरऑल ये दिख जाता है उसमें कि आपको 40% 50% बच्चे आपके सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन 50% सॉल्व कर भी सकते हैं, तो आपके क्लास का रिजल्ट ओवरऑल एवरेज में आ जाता है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो आप उनके लिए देते हैं जो 80% प्लस वाले, वो सबके लिए क्वेश्चन नहीं है, वो बाकी अप्रोच करेंगे, बाकी को सॉल्व करेंगे। तो ये स्कीम है, और आप ये कैसे करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं, जब आप उन सारे बच्चों के लेवल को उनकी भाषा में ही कोशिश करते हैं कि समझा सकें।
डिफरेंट लैंग्वेज में आप जस्ट इमेजिन करिए, आप 4-5 भाषाओं को जानते। जिस रीजन हम हैं, भोजपुरी रीजन, हमारा फर्स्ट L1 भोजपुरी हो जाता है, दैट इज आवर मदर टंग। सेकेंड, हम अपने माहौल और परिवेश में जानते हैं, दैट इज हिंदी। थर्ड, हम अपने स्कूल में सीखते हैं या सोसाइटी हमें सीखने के लिए कहता है, दैट इज इंग्लिश, जो जॉब की भाषा है, जो हमारे एक्सप्रेशन की भाषा है आउट ऑफ आवर स्टेशन। और फोर्थ, जो हम अपने इंटरेस्ट में सीखते हैं। 3 तो हम कंफर्म ट्राई करते हैं कि हमारा अप्रोच हो जाए। फोर्थ से हम अपने इंटरेस्ट में या स्टडी के लिए सीखना पसंद करते हैं। तो ये जो कहता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या? मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ पावरफुल लिंग्विस्टिक फेनोमेनन which evolves from the need to communicate across speech communities. Multilingualism is the ability to speak in more than one language, either by individual speaker or by community or speakers. Person. A multilingual person is one who can communicate in more than one language, be his activity through speaking, writing or signing, or passively through listening, reading or the perceiving. A multilingual person is also known as polyglot. Poly means many and glot language. If we are polyglot, definitely we get success in our life. We make our institution more successful. Sometimes, being a regional person, especially in Bhojpuri region, we feel depressed, we become silent, we are unable to speak towards or before the guardian who comes in the campus and starts speaking the English. Sometimes it also happens that a guardian who comes in the campus and asks the question to the counter, is this campus is English campus? The teachers of the school like to speak in English. Are they able to teach our word to speak in English? What will be our answer? What will be the answer of our computers, our countermen and other things? So, because English has become today a language of employment, a language of expression, a language of status, a language to develop our personality more expressive. Although other languages are also as well as respectful for us, but the language which is more communicative today, we must try to speak that language even in our workplace and classroom. That will be the easy language. From up to 5 in primary section, we can speak in English in more easy and easy language. And above class 5, we can speak regularly and gradually tough, sometimes hard, sometimes ornamental, sometimes phrasal English, so that students can make themselves more easy, more comfort, more disciplined and working. But I always say, let the students speak in class. Never crush them to be silent. You guide them and always tell them to speak. That will make them extrovert. That will make them to speak in the classroom. And your personality as well as the student's personality will become. The teacher who provides opportunities for their students to speak in the classroom always favored and praised by their students. And the teacher who does not provide should only speak himself and try always to boast about himself is never be considered a good teacher. Now, example for the diagram. Student belongs to a Bengali family but living in Delhi. In his school, his first language is English, second language is Hindi. In Delhi, he talks in Mandarin. So the student deals with 3 languages, which is known as Trigura, with almost equal efficiency. In that way, the student becomes a multilingual person. First, a school, language 1, L1 and L2, a student knows 1, 2 and 3. This is the quality of every people sitting here. He is, I can say that he is perfect in all these 3 languages. English, Hindi and his mother tongue, either Bhojpuri and other sort of language. Why it is needed? Needs of multilingualism. Why it is needed? Personal growth. There is no need to explain it. Second, increases vocabulary and efficiency in speech. Broadens employment opportunities. A broad study
job mobility, tolerance and respect towards other cultures. I just ask here, how many people sitting here have read the novels of Sarat Chand? How many people? How many people sitting here have read the novels of Subramanian Swami, poems of Subramanian Swami? How many people sitting here have read any kind of Sanskrit novel? And how many people have sitting here have read the novels of Prem Chand? These are the writers of 4 different languages. Subramanian Swami Tamil, Sarat Chand Bengali, Prem Chand Hindi, Kalidas Sanskrit. If you are interested to know the culture of different tribes and societies, you must have to learn the different types of languages, because you may say that I have read the translation of Prem Chand in English, I have read the translation of different books, but you can't get the original flavor which is written in the original language. The people sitting here, the Bhojpuri Lawrence Bhikhari Thakur, it is possible and it has done also. The different dramas of Bhikhari has been translated in English. Different plays of Rabindranath Tagore has been translated in English. But is there the original flavor to read the translation, being a Bhojpuri regional person? आप जो भिखारी के नाटकों को भोजपुरी में पढ़ के जो आनंद लेंगे, क्या उसके ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद आप आनंद ले पाएंगे? क्या वो फ्लेवर, वर्ड पावर जो उसमें उन्होंने इंपोर किया हुआ है, क्या आपको मिल पाएगा? नहीं। तो आपको डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट क्लास, लिवलीहुड, लाइफहुड यदि जानना है, वहां के कल्चर को तो जानना है, और कल्चर को जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस भाषा को तो जानना है। वहां के लोकल लैंग्वेज को जाने बिना आप वहां के लोगों के इमोशंस को भी नहीं समझ सकते। इमोशनली आप अटैच भी नहीं हो सकते। उनके इमोशंस से अटैच होने के लिए उनके लैंग्वेज को जानना जरूरी है। और why English is successful all around the world? Because I definitely say, I always say that there is no emotion in English language. There is not the word. There are not many words in the English by means of which we can explain our emotions. कराहना, सिसकना, आतुर होना, बेचैन हो जाना, व्याकुल होना, आकुल होना, परेशान होना, छिछिया जाना, छटपटा जाना, ये जो भाव हिंदी में है, इन सारे शब्दों के आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दें? नहीं है इंग्लिश में ऐसे शब्द। उनके पास लिमिटेड वर्ड्स हैं, और लिमिटेड वर्ड्स वाले लैंग्वेज आपकी इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनके इमोशंस भी लिमिट है। आप उनके इंग्लिश के ड्रामाज को, प्लेस को, नोवेल्स को, पोएम्स को, स्टोरीज को आप पढ़ लें, कोई भी स्टोरीज, उनके कैरेक्टर्स बहुत दुखी होते हैं, बहुत तीव्र दुखी होते हैं, तो उनकी इमोशंस 4-5 रूपों में ही प्रकट होते हैं। इंग्लिश के जो लोग बैठे हैं गंभीरता से पढ़े हैं, उनके इमोशंस इससे ज्यादा नहीं जाते। उनके फूल भी मुरझाते हैं, आखिर भी मुरझाते हैं, उनके लिए एक ही शब्द है, वो चाहे डैफोडिल हो और चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, दोनों के मुरझाने का तरीका एक है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों के मुरझाने का तरीका एक नहीं है। हमारे यहाँ फूल मुरझाता है तो उसका तरीका कुछ और होता है, आदमी मुरझाता है तो उसका तरीका कुछ और होता है। दोनों के लिए हम लोग शब्दों का रूप लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड होता है, जैसे कि गेंद फेंकने का थ्रो होता है, पत्थर फेंकने का पेल्ट होता है, बम फेंकने का हार्ड होता है। हिंदी में फेंकना के लिए इंग्लिश में इतनी वर्ड है, आप ही कैसे कर सकते हैं? 3 शब्द है सर। 3 शब्द
उन्होंने, थैंक यू सर, वेरी मच, गेंद फेंकना सर ने बताया, पत्थर फेंकना और बम फेंकना, 3 शब्द इस्तेमाल किए। गेंद फेंकने से जख्मी होने की अवस्था नहीं बनती यदि बहुत तेजी से गेंद नहीं फेंकी। थ्रो करते हैं। पत्थर फेंकने से जख्मी होने की अवस्था बन सकती है, नहीं भी बन सकती है, बन भी सकती है। और बम फेंकने से ऑफ कोर्स। इन तीनों के बीच में यदि फूल फेंकने को क्या कहेंगे सर? थ्रो ही कहा जाएगा। और यदि दूल्हे पर फूलों की बारिश हो गई तो क्या कहेंगे सर? स्वर कहेंगे। और बूंदों की बारिश हो गई तो क्या कहेंगे सर? इसकी बारिश, बरसात की बारिश हो गई तो क्या कहेंगे सर? इसको शावर बोलते हैं। फूल की भी बारिश शावर, और आकाश की भी बारिश शावर। हमारे यहाँ दूल्हे पर फूलों की बारिश को हम बारिश करेंगे, हमारे यहाँ उसके लिए शब्द है। और ये बहुत इस पर बहस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 26 लेटर और 44 साउंड्स के साथ आप अपने को बहुत समृद्ध नहीं कर सकते। हमारे यहाँ 52 के साथ चलते हैं, आप 26 के साथ चलते हैं, आपके दुगना से हमारी शुरुआत होती है। तो बहस ये नहीं, बहस ये है कि बेशक वो यदि आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, इसलिए है कि कम्युनिकेशन पावर उसका ज्यादा है, लर्निंग पावर ज्यादा है, कैपेसिटी है, हम ज्यादा जल्दी ग्रस्त करते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। इसलिए एज वेल एज रेस्पेक्ट इंग्लिश के लिए कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश के साथ दूसरे लैंग्वेज को भी उतना ही महत्व देना है, और इसलिए नहीं कि हमें जानकार बनना है, इसलिए कि हमारे क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा हो सकता है कि दूसरे रीजन और दूसरे लैंग्वेज में अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। और हम यदि उसको इस बेस पर कि नहीं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, यदि उसको क्लासरूम में कहते हैं कि सिट डाउन, यू कांट एक्सप्लेन योरसेल्फ इन इंग्लिश, तो सिट डाउन, और उसकी बात जो आंसर सही जानता है उसके मन में ही तभी रहता है। तो एज ए टीचर, एज ए फैसिलिटेटर, और टीचर को क्या आप तो फैसिलिटेटर ही वर्ड कहेंगे, वो खड़ा होकर यदि हम उसके लैंग्वेज को वो कहते हैं कि यस एक्सप्लेन योरसेल्फ, एक्सप्लेन योरसेल्फ, तो कम से कम वो बात जो है वो आती है साहब, और उसने जो लर्निंग किया है आपके पढ़ाने के आधार पे उसको एक्सप्लेन तो अपने तरीके से कर ही देता है। और यदि आउटपुट यदि जेन्युइन है तो स्कोर तो आपको देना होता है। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए जॉब मोबिलिटी और एब्रॉड स्टडी के लिए कितना जरूरी है मल्टीलिंगुअल रहना, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे जब दूसरे शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक गैप होता है। कई लड़कों को फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, डिप्रेस्ड होते हुए, लास्ट कतार में बैठते हुए और अंतिम अपने शहर में वापस लौटते हुए भी देखा है। और वजह एक मात्र लैंग्वेज, उनकी कैपेसिटी, उनके लर्निंग कैपेसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बस लैंग्वेज उनके लिए प्रॉब्लम है और वे साइलेंट हो जाते हैं। और तो और हमारे अपने बीच में कोई एक आंधी आती है और तूफान आता है, आंधी आती है मान इंग्लिश स्पोकन महिला टीचर आती है, और तूफान आता है मान इंग्लिश स्पोकन मेल टीचर आता है, और स्टाफ रूम में पहले ही दिन गरज के साथ कुछ अंग्रेजी के बौछार कर देता है, और धीरे धीरे वो 10 मिनट के भीतर यदि वो स्टैटिक टीचर है तो स्टाफ रूम को खाली कर देता है 10 मिनट के भीतर, क्योंकि उसने एक ऐसा तूफान लेकर वह स्टाफ रूम में घुसा है जिसके हर कोने में हर तरफ अंग्रेजी है। तो तूफान को झेल रहा है जो अंग्रेजी झेल जाता है, अंग्रेजी बोल जाता है, और जो हम तूफान नहीं झेल पा रहा है धीरे धीरे वहां से झुक झुक के तूफान यहाँ से वो आ रहा है वो नीचे से जाता है, और टीचर इत्मीनान से स्टाफ रूम का राजा हो जाता है। और लोग अब झांकते हैं कि ये बैठा है तो हम नहीं बैठेंगे, निकलेगा तो हम जाएंगे। वैसे ही जब आंधी आती है तो यही सिचुएशन बनता है।
ये दबाव अनावश्यक जो हम अपने माथे पर लेते हैं, अपने दिमाग में लेते हैं, अपने हृदय पर लेते हैं, और बाद में हमारी ये बहुत प्लान्ड साजिश होती है, इस आंधी तूफान को बहुत सुनियोजित तरीके से सिरे से खारिज करना है और इसको एकांतवास देना है। और ये तब होगा जब हम सब लोग बाहर हो जाएंगे या अकेले बैठेंगे। तो या तो हम लोग के रूट में शामिल होगा, माने हिंदी पर उतरेगा, और नहीं तो कोने में बैठा रहेगा, फिर तो ज्यादा बैठे होगा। तो ये क्या है? पावर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। A person has started to speak in English and we have started to feel ourselves that no, please, I'm sorry, we are unable to speak English, so please forgive us. I have many times of work, I am going to forgive. Why this happens? Because we have just to make a little bit laziness to learn the language, nothing else. Using multilingualism as a resource in the class, according to the NCF, National Curriculum Framework 2005. The multilingual characteristics of Indian society should be seen as a resource to promote multilingual proficiency in every child, which includes proficiency in English, reading and writing, listening and speech, contribute to the child's progress in all curricular areas and must be the basis for curriculum planning. Different languages of different trends will be used, creativity in classroom. Students will have exposure to different languages and their sound system, phonological pattern at the same time. Students will learn about the rules of different languages that will have to sharpen their skills of observing, deducing and reasoning, and also enhancing their linguistic and consecutive faculty. The multilingual environment itself will act as a motivation to learn English as the common means of communication. So the ESL, English as Second Language, that will ultimately turn the ESL classroom. The ESL will turn gradually and naturally as the first language of the classroom into a socialized community. First, the student will start to speak in his regional language in the classroom, and second, the time will come when the English as second language that will ultimately turn the ESL class, English as second language, into socialized community. Different types of students in the social way start to speak in English. But first, let them speak in their own language. Don't compel to speak in the first class, first day in English. The ESL teacher may use first language of the pupils that may appear to be a beneficial in a fostering a positive affective environment to restore students' feeling of security and create positive atmosphere in a large classroom. Now the time comes. Till now we have talked what are the benefits, how the students will get benefits to speak different languages. And as everything has a second part, so we'll talk about the second part of the multilingualism. Pronunciation, that is the major problem. Because the students have the different backgrounds. Sometimes it happens that the father and the mother, parents, family background has never spoken in English. The students has got the books from the school that all the books are in English medium. The student is trying himself to read the book. The teacher belonging from a background that is not properly in English medium, he starts to teach the student. Now the teacher, that means facilitator, and the student, both have started to speak in English, but both have the problems of pronunciation. So the real meaning, it may happen that the real meaning will not be produced when the pronunciation is there. Multilingualism creates confusion among not only the students but also the teachers whose pronunciation of the English is affected to a great extent by the characteristics of their mother tongue. Like a South Indian student often pronounce the word all starting as Atlantic instead of starting O as an O. This type, अब यूपी से बनारस के आसपास जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी, बेचू के आसपास, वो AM हम कहते हैं अपने रीजन में AM, I am a student, और कभी भी वालों से बात करिएगा, I am, AM को एक कहते हैं।
ये क्या है, रीजनल जो एसेंस है वो चेंज, वो अम का आई अम। तो ये जो लैंग्वेज का बदलाव है वो बताएंगे पिंटू सर। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आई एम स्पीकिंग को क्या बोलेंगे आप? आई एम स्पीकिंग बोलते हैं। हाँ। तो वहाँ तो कुछ और बदला, असम बिलोंगिंग टीचर है, वहाँ स्पीकिंग का कुछ और तरीका है, यूपी में कुछ और तरीका है, ये रीजनल चेंजेस है। लेकिन जब आप ग्लोबल लेवल पर इसको बोलने आते हैं तो चीजें निकल के आती हैं कि ये रीजन क्लियर है, वो हमारा रीजनल तो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही ग्लोबल में आप कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फेस करने जाते हैं, उसमें कोई अटेंड करते हैं, कोई आजकल तो जमाना है कोई जुड़ जाता है सुनने लगता है, तो वहाँ आप बिल्कुल कमेंट्री में सुनिए जो आप क्रिकेट देखते हैं प्रेजेंटेशन के समय जो इंग्लिश या दूसरे देशों के क्रिकेटर्स बोलते हैं, हमारे क्रिकेटर्स बोलते हैं, फर्क दिखता है, मीनिंग तो समझ में आ जाती है दोनों की। उनके ये क्या है, ये जो टंग है, जो एसेंस है बोलने का वो डिफरेंट है। और थोड़ी इंग्लिश की बात, हिंदी में हम जो हिंदी बोलते हैं छपरा में, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, कोलकाता में भी बोली जाती है, और तमिलनाडु में जो हिंदी बोली जाती है, बदलाव दिखता है। वो एसेंस है, ये टंग है, प्रोनाउंसिएशन है जो बदलाव लाता है। लेकिन मानक तो कोई एक ही होता है, स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं वो तो कोई एक ही। और ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में जो मानक हिंदी बोली जाती है ये हम दिल्ली में उम्मीद नहीं कर सकते। अरे राजा अपन को सपने देखने नहीं मानता, ये मुंबई में बोली जा सकती है, लेकिन ये हिंदी नहीं है ये तो हम कह सकते हैं। और लेकिन ये हिंदी की श्रेणी में है, उसकी भाषाएं उसकी बोलियां जो हो जाए हिंदी के आसपास ठहर सकती है, हिंदी नहीं है। तो हिंदी में भी यहाँ भी हम लोग यदि बोलना शुरू कर लें और 3 वाक्य का कोई पैराग्राफ दिया जाए तो 40 आदमी हम लोग बैठ रहे हैं, 40 आदमी 40 तरीके से उसको पढ़ ही देंगे। सबके अपने अपने टंग है, अपनी जुबान है, अपने बोलने का तरीका है, अपने पढ़ने का तरीका है। सेकंड, सिंटैक्स, द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म may also be perceived in the confusion committed by the students in framing sentence in English which is affected by the syntax in mother tongue. Like in Bengali we say, राजेश पांडे सर कुछ पढ़ दे इसको। आमी भात खाई, आमी भात खाई, this is written here, but the structure of the sentence in English, I eat rice. So formation of sentence is one of the major problem is seen in a multilingual person. Frequently switching from one language to another language also creates within language which is basically a fusion of two languages which is multiply understand for both speakers. This language is basically used in the field of trade, commerce, but its application can also be perceived in the writing of the students belonging to an area having inhabited people, language and studying through the medium of their native language. ये बहुत सामान्य और बहुत कॉमन बात है कि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लड़के यदि हमारे क्लासरूम में आ जाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप ये देखें, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हमारे एक टीचर हमारे क्लासरूम में एक तमिल और एक बंगाली बोलने वाला लड़का बैठ रहा था, और हमारे यहाँ का कोई बच्चा यदि जाके हरियाणा में या हिमाचल के किसी क्लासरूम में बैठ जाता है, बेनिफिट्स उसके ये हैं कि हम 3 लैंग्वेज तो जान ही रहे हैं कम से कम, अपना मदर टंग हिंदी और इंग्लिश। अब एक बंगाली लड़के ने यदि हमने इंटरेस्ट शो किया तो अल्फाबेट, बंगाली अल्फाबेट, कुछ बेसिक राइटिंग्स और बेसिक स्पोकन वो लड़का तो हमें सिखा ही सकता है उस क्लासरूम में, पूरे क्लासरूम को सिखा सकता है। एक्टिविटी के तहत, इंटरेस्टिंग पार्ट के तहत यदि हम उसको लागू कर देते हैं वीकली एक दिन कि यदि अदर रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला एक लड़का है वो क्लासरूम में एक लेसन हर एक वीकली देगा, इस साल भर में एक लैंग्वेज तो हमारा बढ़ ही जाएगा। और उस लड़के को क्या फायदा होगा जो बंगाली रीजन का लड़का है, तो बंगाली हिंदी इंग्लिश तो वो भी जानता है, वो हमारा भोजपुरी जान जाएगा। तो जो ट्रांजेक्शन ऑफ लैंग्वेज होगा ये तो टूरिज्म ऑफ द लैंग्वेज होगा, एक चौथे लैंग्वेज के रूप में डेवलप करेगा क्लासरूम में। यदि कोई 5वां लैंग्वेज बोलने वाला बच्चा है या स्कूल में यदि कोई 5-6 किस्म
के लैंग्वेज बोलने वाले अलग अलग रीजन के लड़के हैं, यदि हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, उनकी लिस्ट बना ली और उन लड़कों का क्लासरूम प्रोवाइड कराना शुरू किया, तो हमारा स्कूल मल्टीलिंगुअल तो हो ही सकता है 3 के बाद। यद्यपि हम लोग एक लैंग्वेज के बाद ही मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं, लेकिन 5 लैंग्वेज 6 लैंग्वेज हम अपने स्कूल में तो सीख ही सकते हैं यदि रीजनल लड़के आ जाते हैं तो as a teacher it's our duty to choose and know about the every student that which student have the different power to speak in different language. कल सर बात कर रहे थे, मैंने सुना 2 न्यू एडिशन थे। The boys were kids actually. They were belonging from the Karnataka and they had joined in the Chhabra and they have came here to take their admission in the school. If the 2 students who are belonging not more than 7 years are joined in the school, definitely their mother tongue will be although Bhojpuri in the family, but out of the family they have definitely known about the Karnataka language. So if we are interested, we write their names to know the multilingual student and we try to make a classroom for those students to speak to write only alphabets of Karnataka in their classroom and other class will learn about those classes. So a Karnataka language is definitely the language which is spoken in Karnataka. All the classes will definitely learn and that will be the kids class, especially our class play or 2 or UKG or LKG. So if our students will learn in LKG and UKG a different language, gradually they will grow up and another they will be learner of the another language. So we have to just watch, wait and search the opportunity. A teacher always creates opportunity. You have definitely learned the name of Hagen, that will be a great philosopher. He has said, बहुभाषाविद, that means multilingualistic person, होना और उसके लिए अवसर उपलब्ध कराना, दोनों तो अलग अलग हैं। एक बहुभाषाविद इंडिविजुअल अचीवमेंट है और उसके लिए अवसर उपलब्ध कराना सामूहिक उपलब्धि है। तो यदि आप बहुभाषाविद हैं, आप मल्टीलिंगुअल हैं, तो आपकी जिम्मेवारी में जो शामिल है, क्योंकि आपने सोसाइटी से गेन किया है, तो आप सोसाइटी को रिटर्न करें। एक ह्यूमन बीइंग की ये मतलब ये मोरल ड्यूटी है। The whatever you have got from society, just retain it with more than more, giving more benefits. आप टैक्स के साथ आए, आपने जो समाज से पाया है उसका चौगुना समाज को दे। तो यदि आप मल्टीलिंगुअल हुए हैं सोसाइटी से सीखकर, तो आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि लोग मल्टीलिंगुअल बने। और यदि आप टीचर हैं, तो ये सुने में सुहाता है, क्योंकि आपके पास सीखने वाले लोग, एक व्यवसायी यदि मल्टीलिंगुअल है तो उसके पास सीखने वाला कोई नहीं, तो उसके मल्टीलिंगुअलिज्म का ज्ञान केवल व्यवसाय में उपयोग हो सकता है। लोगों से अलग अलग पार्टी से डिफरेंट लैंग्वेज में बात करके इंप्रेस कर सकता है, अपने व्यवसाय को मुनाफा में पहुंचा सकता है, लेकिन यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कि लोग आपके पास सीखने आते हैं। और ये उपलब्धि कम नहीं यदि हम इसको समझें। आपके सामने 50 लोग बहुत विनम्र होकर बैठे हुए हैं सुनने के लिए कि आप कुछ बोले और मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे, तो सोचिए कि आप कितने लकी हैं दुनिया में, कितने लकी आदमी हैं। और यदि आप उस क्षण का उपयोग उन लोगों को सिखाने में कर रहे हैं और आपके सिखाए से कोई आदमी यदि सीख जाता है और वो आपका एक भी सबक 60-70 साल की जिंदगी में एक सबक भी यदि वह याद रखता है और आपने बताए गए उस सबक से जिंदगी में किसी बड़े हादसे से वह बच जाता है, तो सोचिए कि आपने कितना बड़ा उपकार। तो आपके हाथ में एक शिक्षक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका है और आप जिस भाषा में उस बच्चे को समझा सकते हैं। माँ को पहली गुरु, पहली शिक्षिका और माँ को इतना बड़ा दर्जा क्यों है? वह इसीलिए है कि हम जैसे टीचर, आप जैसे टीचर बच्चों के कहने पर उसकी समस्या जानते हैं। माँ बच्चों को बिना भाषा के उसकी समस्या जानती है।
बच्चे जो नहीं कहते माँ उसको भी समझती है। 5 दिनों का अबोध बच्चा, 10 दिनों का अबोध बच्चा जो बस उसके मुंह से ध्वनि मात्र निकलती है, माँ समझती है कि ये रोने की ध्वनि है, ये हंसने की ध्वनि है, ये भूख लगने की ध्वनि है, ये किसी दर्द की ध्वनि है, ये किसी परेशानी की ध्वनि है, ये आनंद की ध्वनि है। और वो ध्वनि का वर्गीकरण माँ अपने इमोशंस से जोड़कर जो कर लेती है, उससे बड़ी गुरु कोई नहीं होगी। हमारे सामने तो समस्या आती है एक्सप्लेन वे में, तब हम उसको डिफाइन करते हैं। इसलिए माँ को बड़ी गुरु कहा गया। एक अच्छे शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों के साथ उनकी भाषा से अपना रिश्ता जोड़ ले। क्लासरूम की भाषा कोई भी एक हो सकती है, लेकिन अपने विद्यार्थियों से रिश्ता जोड़ने की कोई भाषा नहीं। यदि आप उस रिश्ता को जोड़ लेते हैं और अपने विद्यार्थी को अलाउ करते हैं कि आप किसी भी भाषा में एक्सप्लेन करो, आंसर के ऊपर लिखने की भाषा कोई एक हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की भाषा एक नहीं हो सकती, समझने की भाषा एक नहीं हो सकती। और मेरा तो ये भी मानना है, ऐसा करता भी नहीं। यदि किसी चीज को समझाने के लिए अपने इंग्लिश के क्लासरूम में मुझे भोजपुरी के उदाहरणों को भी देना पड़े तो मुझे रत्ती भर गुरेज नहीं होता है, और मैं फ्रीली एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उस समय मेरा मकसद भाषा पर नहीं, लर्निंग पे होता है कि मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ मेरा बच्चा समझ रहा है। यदि वो समझ रहा है तो मेरा मकसद उस समय पूरा हो जाता है। अरे जब वह समझ जाता है तो फिर तो भाषा सुधारना तो ये टाइम बेस्ड काम है, वो तो हम सुधारेंगे, उसको समझाएंगे कि इसको इस भाषा में ऐसे लिख। लेकिन लिखते कैसे हैं ये जरूरी है। क्लासरूम में आप सीधे को लिखते हैं, सीधे ए लिखते हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। आपके बच्चे को जो 2.5 इयर्स का है उसको नहीं पता है कि आपने जो लिखा है वह क्या है। उसकी नजर में एक डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ नहीं। जैसे वो मोर के पंख बनाता है, जैसे कोई चिड़िया बनाता है, उसको लगता है आपने भी कुछ बनाया है। अब आप उसकी पहचान कराते हैं कि दिस इज कॉल्ड ए, ये दिस इज कॉल्ड बी। जिस डिजाइन का नाम बी है, इस डिजाइन का नाम सी है, और तुम जो ये कपड़े पहन के आए हो, तुम एक लड़के हो और तुम्हारा नाम राघव है। तुम्हें एक नेम दिया गया है ओनली टू आइडेंटिफाई यू, नथिंग एल्स। सब एक ही लोग हैं, लोगों में पहचान बनी रही थी, उनको नाम दे दिया गया ताकि सब एक जैसे दिखे लेकिन नाम अलग अलग हो, पहचान के लिए। अब उस नाम को, तुम पहचान को कहां तक ले जाना चाहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। जैसे ये पहला वर्ड है, जेड लास्ट वर्ड है। जब हम बच्चों के साथ गेम खेलते हैं, ए से हम 500 शब्द बोलते हैं, जेड से 50 भी नहीं बोल पाते, क्योंकि जेड बेचारा दबा पूछा वर्ड है, उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट नहीं किया है। जेड का आइडेंटिफिकेशन कमजोर है, ए का आइडेंटिफिकेशन ज्यादा है। जैसे राघव का यदि ज्यादा है और माधव का कम है, और माधव का दोष है कि उसने अपने पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप नहीं किया, राघव ने कर लिया, नाम करो तो दोनों का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे एज ए टीचर अपने क्लासरूम में मल्टीलिंगुअल्स का ये कंक्लूजन है जो लास्ट पार्ट है। लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन. Its development occupied an important place in the national policy of education and program of action. 2020 एनईपी जो लागू 2024 से हो गया है, ये भी इस बात को मानता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म होना ही चाहिए. The one and only way to introduce multilingualism through a formal system of education is to make provisions for the study of several languages in the school curriculum. जो हम 1, 2, 3 करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हमारा लैंग्वेज है. So we know of the positive relationship between multilingualism, positive growth and educational achievement. There is every need to promote multilingual education in schools. Curricular achievement is increased through such education. It helps students to achieve their self-esteem, confidence, their own ability and potentiality and curricular success. Be a multilingual person has a huge scope in the aspects of job. It also helps to understand of history and heritage, of traditions and culture and territory. So these are the benefits. I hope you have definitely enjoyed the session. And I can also may say that
multilingualism, that means bahubhashavad. There are different words. There is some of the time is raised, and that time it will be used from your part. I would like to ask any of my colleagues, kindly explain 2 or 3 words which are near about equal but have the different meanings in other languages. Near about equal. Just I am telling a word, for example, as do you know the word yajman? यजमान शब्द किसे कहते हैं? यजमान कौन होता है? कोई भी बताए? शिष्य। शिष्य। और क्या विद्यार्थी हमारा यजमान है? अपने से बड़े। जिसके घर कोई मतलब आता है वो होस्ट हो गया। होस्ट, दैट इज कॉल्ड मेजबान। पुरोहित के यजमान, पुरोहित का यजमान होता है। पुरोहित क्या होता है? परिवार या पूर्वजों का हित चाहता है उसको पुरोहित कहा जाता है। परिवार या पूर्वजों का जो हित चाहता वो पुरोहित। और पुरोहित जिसके यहाँ जाता है वह यजमान। यजमान। पुरोहित का होस्ट जो होगा वो यजमान हो गया। जी धन्यवाद। बैठिए, हमारे यहाँ बैठे हैं निकल पूरा हितम सैव पुरोहितम हमारे यहाँ कहा है। और पूरा जो शब्द है चतुर्दिक संपूर्ण का भाव बोध कराता है, जो संपूर्णता में हित की कामना करता है। व्यक्ति, समूह और समाज की संपूर्णता में जो हित और कल्याण की कामना करे, पूरा हितम और विसर्ग ओ में बदल जाता है विसर्ग संधि के नियम से, तो पुरोहित हो जाता है। ऐसा बना और जो मनोज हो जाता है। तो जो संपूर्णता में कल्याण की कामना करे वो पुरोहित है। और पुरोहित जिस समाज, जिस समूह और जिस परिवार के कल्याण की कामना करता है वह यजमान है। अब आप हिंदी में शब्द संश्लेषण और शब्द विश्लेषण पढ़ते हैं, तो शब्द संश्लेषण माने शब्दों का संकुचन हो जाना, शब्दों के अर्थों का संकुचन हो जाना। यजमान शब्द का अर्थ संकुचित हुआ है। यजमान एक पूरा समूह हो सकता है, एक पूरा समाज हो सकता है, पूरी कम्युनिटी हो सकती है। लेकिन क्योंकि और एक पुरोहित उनका हो सकता है, पूरे गांव का एक पुरोहित हो सकता है, क्योंकि पूरे गांव के कल्याण की कामना कर रहा है। हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष उसका यजमान है, क्योंकि ये शब्द संकुचन हुआ कि एक आदमी जिसके यहाँ वो पंडित जी या पुरोहित जी, पंडित जिसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पर यह कार्य उन्हीं के लिए में हुआ करता है, इसलिए तो वह यदि, हालांकि पुरोहित कोई भी हो सकता है। यदि विदेश में रहने वाले मेरे चाचा यदि मेरे परिवार के कल्याण की कामना करते हैं तो ये भी मेरे पुरोहित हैं, क्योंकि कामना करते हैं। संस्कृत के शब्दों में रूढ़िवादिता कहीं नहीं है, वो उसकी व्यापकता है, लेकिन उसको हम कोई शब्द संकुचन के तहत रूढ़िवादी तरीके से सोचते हैं तो लगता है कि ये उन्हीं खास लोगों के लिए है, लेकिन है बड़ी व्यापकता उसका, समझने का अंतर है। तो वो भी हमारे पुरोहित हैं और हम उनके यजमान हैं। यजमान शब्द का अर्थ है कल्याण चाहने वाला। कौन कल्याण चाहने वाला? अब उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि वो निठल्ला आदमी है और केवल कल्याण चाहता है। कर्म में रत रहकर अपने समुदाय के कल्याण की कामना करने वाला यजमान है। क्योंकि वह कर्म में रत है, इसलिए उसे वैदिक विधि विधान करने का समय कम है। वह अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, अपनी दिनचर्या में है, अपनी नौकरी में है, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसका कल्याण हो। तो उसने किसी से आग्रह किया, किसी से प्रार्थना की और किसी ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया समाज के कल्याण में, वो पुरोहित हो गया और यह यजमान हो गया, जो कर्मरत है और कल्याण की कामना चाहता है और जो कल्याण की कामना में लगा हुआ है वो यजमान है।
कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब तमिल भाषा में आप देखेंगे कि यजमान का मतलब क्या होता है, तो वहाँ अर्थ निकलेगा बूढ़ी अम्मा, दादी, बुजुर्ग परिवार। तो भाव तो वही जाता है कि बूढ़ी अम्मा या दादी भी तो परिवार की कामना ही करती है कि अच्छा ही हो परिवार में हमेशा। लेकिन हमने दक्षिण भारत में वो शब्द उसने ग्रहण किया है भाव के आधार पर, तो यजमान को बुजुर्गों से जोड़ के देखा है। और हमारे यहाँ हमने उत्तर भारत में संस्कृत के आधार पर पूरा विकल्प करके देखा है, तो हमने एक आदमी विशेष को उसको संश्लिष्ट कर दिया है, उसको एक आदमी वो शब्द को प्रक्षेपित कर दिया है कि बस आप ही पुरोहित। तो ये हुआ कि मल्टीलिंगुअल जब आप होंगे, दो भाषाओं को जानेंगे, तो दक्षिण भारत के किसी उपन्यास में यदि आप पढ़ रहे हैं और पुरोहित शब्द वहाँ यदि आपको मिल जाता है और पता चलता है कि वो पुरोहित में दायम्मा है, एक नाम यदि दायम्मा आ जाए तो आपको लगेगा कि दायम्मा पुरोहित कैसे हो सकती है, वो तो महिला है। लेकिन यदि आप वो लैंग्वेज जान रहे हैं तो आप सहजता से उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं ये तो पुरोहित होती है, तो पुरोहित का मतलब ये। वैसे ही अंग्रेजी में कई सारे शब्द हैं जहाँ आप वहाँ कुछ और मतलब हो रहा है, यहाँ कुछ और मतलब हो रहा है, और आप यदि नहीं समझते हैं, क्लासरूम में है, ब्रदर का मतलब भाई ही समझते हैं, सिस्टर का मतलब बहन ही समझते हैं, और नोवेल में पता चलता है कि ये कैरेक्टर को किसी सिस्टर के साथ प्रेम हो गया, आपको लगा कि 5 साल की लड़की से प्रेम हुआ कैसे? अब कैसे? एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर पूजा पाठ जो है आप कर रहे हैं, सर इससे कितने विधियां हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश दीजिए और बोलिए। जैसे पूजा पाठ करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, जैसे वैदिक हो गया, तांत्रिक हो गया, ये सब। मित्रों, पूजा पाठ के तरीका पर दोस्तों ने सवाल किया है। मैं आपको जरूर आश्वासन देता हूँ कि रविवार का सत्र आपके नाम है, क्योंकि ये सब नहीं पढ़ा है। आपको तो सुना, आपको बहुत